ابن صادق کی گزشتہ زندگی ناکامیوں کی ایک طویل داستان تھی۔ وہ یروشلم کے ایک مقبول یہودی گھرانے میں پیدا ہوا۔ ذہین ہونے کے باعث اس نے 16 برس کی عمر میں ہی عربی، فارسی، یونانی اور لاطینی میں غیر معمولی استعداد پیدا کر لی۔ 18 سال کی عمر میں اسے ایک عیسائی لڑکی مریم سے محبت ہو گئی اور وہ اس کے والدین کو شادی پر رضامند کرنے کے لیے عیسائی ہو گیا۔ لیکن مریم کچھ عرصہ ابن صادق کی دلجوئی کرنے کے بعد اس کے چچا زاد بھائی الیاس پر فریفتہ ہو کر اس سے نفرت کرنے لگی۔ ابن صادق نے بہت کوششوں کے بعد مریم کے والدین کو شادی پر رضامند کیا، لیکن وہ ایک موقع پا کر اپنے نئے عاشق کے ساتھ فرار ہو گئی اور دمشق پہنچ کر اس سے شادی کر لی۔ مریم کی محبت اور اس اخلاق سے متاثر ہو کر الیاس نے بھی عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ الیاس ایک بلند پایہ معمار تھا۔ اس نے دمشق میں معقول آمدنی کی صورت پیدا کر لی اور وہیں مکان بنا کر زندگی کا دن گزارنے لگا۔ 1 سال کے بعد الیاس کے گھر ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ اس کا نام زلیخا رکھا گیا۔ ابن صادق کو سخت جستجو کے بعد ان کا پتہ چلا۔ وہ دمشق پہنچا۔ وہاں محبوبہ اور بھائی کو عیش و آرام کی زندگی بسر کرتے دیکھ کر اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ چند دن وہ دمشق کے گلی کوچوں کی خاک چھانتا رہا۔ بالآخر اسلام قبول کر کے دربار خلافت میں حاضر ہوا۔ مریم پر اپنے حقوق جتا کر درخواست کی کہ وہ الیاس سے چھین کر اسے دلائی جائے۔ وہاں اسے حکم ملا کہ یہودی اور عیسائی ہماری امان میں ہیں۔ چونکہ مریم نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے، اس لیے اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ قسمت کا مارا نہ یہودی تھا، نہ عیسائی تھا، نہ مسلمان۔ چاروں طرف کی مایوسی دل میں انتقام کی آگ کو ٹھنڈا نہ کر سکی۔ دمشق کی خاک چھاننے کے بعد یہ کوفہ میں حجاج بن یوسف کے پاس پہنچا اور اسے اپنے سرگزشت سنا کر مدد کی درخواست کی۔ حجاج نے خاموشی سے اس کی سرگزشت سنی۔ ابن صادق نے اس کی خاموشی سے فائدہ اٹھا کر اس کی تعریف کی اور دربار خلافت کی مذمت میں چند فقرے کہہ ڈالے۔ اس نے کہا، اگر آپ میرے دل سے پوچھیں تو میں کہوں گا کہ ذاتی قابلیت کے اعتبار سے آپ مسند خلافت کے زیادہ حقدار ہیں۔ ابھی ابن صادق کے فقرے کے آخری الفاظ ختم بھی نہ ہوئے تھے کہ حجاج نے ایک سپاہی کو آواز دی اور حکم دیا کہ اسے دھکے دے کر شہر سے نکال دو، اور ابن صادق کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہاری سزا قتل تھی، لیکن میں اس لیے درگزر کرتا ہوں کہ تم میرے ہاں ایک مہمان کی حیثیت سے آئے ہو۔ ابن صادق شام کے وقت شہر سے نکلا اور رات ایک راہب کے جھونپڑے میں پناہ لے کر علی الصبح خطرناک عزائم کے ساتھ یروشلم کی طرف روانہ ہوا۔ وہ یروشلم میں بھی زیادہ دیر نہ ٹھہر سکا۔ چند سال تک وہ اپنے بھائی اور محبوبہ کے علاوہ تمام دنیا کے خلاف جذبہ انتقام کے لیے مارا مارا پھرتا رہا۔ بالآخر اس نے اپنے ساتھ شر پسندوں کی خطرناک جماعت پیدا کر لی اور ایک زبردست سازش کے ارادے سے انہیں تمام ملک میں پھیلا دیا۔ وہ اس مختصر جماعت کا روحانی پیشوا بن بیٹھا۔ ایک دن اسے اپنے چچا زاد بھائی سے انتقام لینے کا موقع ملا اور وہ اس کی اکلوتی بیٹی زلیخا کو اغوا کر لایا۔ زلیخا کی عمر اس وقت 8 سال تھی۔ ابن صادق اسے لے کر ایران کی طرف بھاگا اور مدائن میں اپنی جماعت کے اسحاق نامی ایک شخص کا سپرد کر کے پھر سے اپنے تخریبی مقاصد کی تکمیل میں مصروف ہو گیا۔ 2 ماہ بعد اس کی جماعت کے خفیہ کارکنوں نے الیاس اور مریم کو قتل کر ڈالا۔ اس نے اس صفاقانہ قتل کے بعد بھی بس نہ کی اور اپنی بقیہ زندگی کو تمام دنیا کے لیے خطرناک بنانے کی ٹھان لی۔ عالم اسلام میں سیاسی اقتدار حاصل کرنے کی نیت سے وہ حکومت کے خلاف سازشوں میں مصروف ہو گیا۔ چند خارجیوں اور اسلام کے دشمنوں نے اس کے ساتھ بے پناہ عقیدت کا اظہار کیا، لیکن اس کے مقاصد کی تکمیل کے راستے میں مالی مشکلات حائل تھیں۔ اس کے ذہن میں ایک تدبیر آئی اور وہ 2 مہینوں کا سفر ہفتوں میں طے کرتا ہوا کیسر روم کے دربار میں حاضر ہوا۔ کیسر اپنے مشرق میں اپنا کھویا ہوا اقتدار دوبارہ حاصل کرنا چاہتا تھا، تاہم ابھی تک اس کے دل میں اپنے آباء و اجداد کے شکستوں کی یاد تازہ تھی۔ اس نے ابن صادق کے ساتھ کھلے طور پر شریک عمل ہونے کی ضرورت نہ کی، لیکن مسلمانوں کے اس حد تک خطرناک دشمن کو حوصلہ افزائی ضروری خیال کی۔ اس نے ابن صادق سے کہا، ہم تمہاری ہر ممکن طریقے سے مدد کریں گے، لیکن جب تک مسلمان ایک ہیں ہم ان پر حملہ کرنا خلاف مصلحت سمجھتے ہیں۔ تم واپس جا کر اپنا کام جاری رکھو، ہم تمہاری خدمات کا خیال رکھیں گے۔ ابن صادق وہاں سے سونا چاندی اور جواہرات کے گراں بہا تحائف لے کر واپس آیا اور کوفہ اور بصرہ کے درمیان ایک گمنام مقام کو اپنی قیامگاہ بنا کر اپنا تخریبی کام شروع کر دیا۔ حجاج کے خوف سے اس نے کئی سال تک اپنے خیالات کے اعلان کی ضرورت نہ کی اور تمام کوششوں کو اس کی نظروں سے پوشیدہ رکھنے کے لیے ہر ممکن احتیاط سے کام لیا۔ چند برس کی سرتوڑ کوشش اور محنت سے اس نے 1000 اشخاص کی جماعت تیار کر لی۔ اس جماعت کے اکثر افراد ایسے تھے جن کا ضمیر وہ سونے اور چاندی کے عوض خرید چکا تھا۔ وہ کیسر روم کو اپنی خدمات سے باخبر رکھتا
और वहां से हस्बे जरूरत मदद मंगवा लेता। जब उसने महसूस किया कि इसकी जमात कदरे ताकतवर हो गई है और कुफा और बसरा के अक्सर लोग हज्जाज से नफरत करते हैं, तो अपने मद्दे मुकाबल पर आखिरी ज़रब लगाने के लिए तैयार हो बैठा। एक दिन उसके जासूसों ने उसे खबर दी कि आज हज्जाज कुफा में गया है और इब्ने अमर फौजी भर्ती करने के लिए तकरीर करने वाला है। उसे ये भी मालूम हुआ कि बसरा के अक्सर लोग फौज में भर्ती होने से कतराते हैं। इब्ने सादक ने इस मौका से फायदा उठाना चाहा और पहली मर्तबा अपने गोशे से निकलकर अहले बसरा के आम जलसे में हिस्सा लेने की जरूरत की। उसे यकीन था कि वह बसरा के गैर मुतमईन लोगों को अपने जादू बयानी से मुश्तइल करने में कामयाब होगा, लेकिन उसका ये वहम गलत साबित हुआ। नईम ने अचानक नमूदार होकर उसका बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। इब्ने सादक बसरा से दम दबाकर भागा और अमला जाकर खलीफा के भाई सुलेमान के पास पनाह गजी हुआ। 1000 की जमात में से सिर्फ चंद आदमियों ने उसका साथ दिया। चूंकि हज्जाज बिन यूसुफ सुलेमान को वली अहदी से मजूल करने में खलीफा का हम ख्याल था, इसलिए सुलेमान हज्जाज और उसके साथियों को अपने बदतरीन दुश्मन और हज्जाज के दुश्मनों को अपना दोस्त ख्याल करता था। हज्जाज बिन यूसुफ ने इब्ने सादक की फितना पर्दाजी से वाकिफ होते ही उसके ताक़ुब में सिपाही रवाना किए। जब उसे मालूम हुआ कि सुलेमान रमला में उसे पनाह दे चुका है, तो खलीफा को तमाम हालात से आगाह किया। दरबार खिलाफत से सुलेमान के नाम ये हुक्म सादर हुआ कि इब्ने सादक और इसके साथियों को पाबा जंजीर हज्जाज बिन यूसुफ के पास रवाना किया जाए। सुलेमान इब्ने सादक की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा चुका था और उसकी जान बचाना चाहता था। उसने इब्ने सादक को अस्फहान की तरफ भगा दिया और दरबार खिलाफत को लिख भेजा, इब्ने सादक रमला से फरार हो गया है। चंद रोज अस्फहान की खाक छानने के बाद इब्ने सादक ने शिराज का रुख किया। शिराज से 50 कोस के फासला पर जनूब मशरिक की तरफ पहाड़ों के दरमियान पुराने जमाने का गैराबाद किला था। इब्ने सादक ने उसे किले में पहुंचकर इत्मीनान का सांस लिया और अपनी ताजा मुसीबतों की जिम्मेदारी नईम पर आयद करते हुए उसे एक इबरतनाक सजा देने का मंसूबा बांधने लगा। नईम इब्ने सादक के सामने खामोशी से खड़ा था। एक सिपाही ने अचानक उसे धक्का देकर मुंह के बल जमीन पर गिरा दिया और कहा, बेवकूफ, ये बसरा के मस्जिद नहीं, उस वक्त तुम हमारे अमीर के दरबार में खड़े हो। यहाँ गुस्ताखों के सर कलम किए जाते हैं। इब्ने सादक ने इस हरकत पर गुस्से का इजहार करते हुए कहा, बेवकूफ हो तुम, बहादुरों को बहादुरों के साथ इस तरह पेश नहीं आना चाहिए। ये कहकर इब्ने सादक अपनी जगह से उठा और नईम को बाजू का सहारा देकर खड़ा किया। फर्श पर गिरने से नईम की नाक से खून बह रहा था। इब्ने सादक ने अपने रुमाल से इसका मुंह पोंछा और इसकी तरफ एक हकारत अमीज तबस्सुम के साथ देखते हुए कहा, मैंने सुना है आप अपने मेजबान का नाम निहायत बेकरारी से पूछते रहते हैं। अफसोस, आपको बहुत इंतजार करना पड़ा। मेरी भी ख्वाहिश थी कि बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होकर आपकी ज़ियारत करूं, लेकिन फुर्सत ना मिली। आज आपसे मिलकर जो मसरत मेरे दिल को हुई है वो मैं ही जानता हूँ। मुझे यकीन है कि आप भी अपने पुराने दोस्त से मिलकर बहुत खुश हुए होंगे। कहिए, तबीयत कैसी है? आपका रंग बहुत जर्द हो रहा है। मेरे ख्याल में इस कोठड़ी की तंगी और तारीकी में आपकी मुजाहिदाना तबीयत बहुत परेशान हुई होगी, लेकिन आप शायद नहीं जानते कि इस छोटे से किले में कोई बड़ी कोठड़ी नहीं, इसलिए मेरे आदमी आपको वहीं रखने पर मजबूर थे। आज मैंने थोड़ी देर के लिए आपको इसलिए बाहर निकाला है कि आप रोशनी और तारीकी में इम्तियाज करने वाले हिस्से आरी ना हो जाएं। लेकिन आप तो मेरी तरफ इस तरह देख रहे हैं जैसे मौके अजनबी हूँ। पहचानते नहीं आप मुझे? आपसे मेरा तारुफ बसरा में हुआ था। अगरचे हमारी पहली मुलाकात निहायत नाखुशगवार हालात में हुई थी, ताहम हमारे ताल्लुकात उस दिन से कुछ ऐसे नहीं कि एक दूसरे को भूल सकें। मुझे बड़ी मुश्किल से आपकी इस तकरीर की दाद देने का मौका मिला है, और मुझे आप जैसे गयूर मुजाहिद को अब्दुल्ला बिन उबई के जानशीन के सामने इस तरह खड़े देखकर बहुत रहम आता है। बताइए आपके साथ क्या सलूक किया जाए। इब्ने सादक का हर लफ्ज नईम के दिल पर तीर और निश्तर का काम कर रहा था। उसने होंठ काटते हुए कहा, मुझे असीर होने का गम नहीं, लेकिन इस बात का अफसोस है कि मैं तुम जैसे बुज़दिल और कमीने शख्स की कैद में हूँ। अब जो तुम्हारी जी में आए करो, लेकिन ये याद रखो कि मैं जिंदगी और मौत दोनों तुम्हारे लिए खतरा है। इस वक्त मेरे हाथ जंजीरों में जकड़े हुए हैं, मगर असीरी मुजाहिद को बुज़दिल नहीं बना सकती। इब्ने सादक ने नईम के सख्त अल्फाज से बेपरवाही का इजहार करते हुए कहा, तुम बहादुर होने के साथ बेवकूफ भी हो। तुम नहीं जानते कि तुम्हारा सर इस वक्त एक अजदहा के मुंह में है। तुम्हें निकल जाना या छोड़ देना उसकी मर्जी पर मुनहसिर है। मेरी कैद से आजाद होने का ख्याल भी दिल से निकाल दो। इस किला में 200 सिपाही हर वक्त नंगी तलवारों के साथ तुम्हारी निगरानी के लिए मौजूद होते हैं। ये कहकर इब्ने सादक ने ताली बजाई
और किले के मुख्तलिफ गोशों से कई सिपाही नंगे तलवारें लिए हुए नमूदार हुए। नईम को इनमें से हर एक का चेहरा इब्न सादक की तरह सफाक नजर आता था। नईम ने कहा, तुम जानते हो कि मैं बुज़दिल नहीं हूँ, तुमसे रहम की दरख्वास्त नहीं करूंगा। तुम्हारा मकसद अगर मेरी जान लेना है तो मैं तैयार हूँ। इब्न सादक ने कहा, तुम ये समझते हो कि दुनिया की सबसे बड़ी सजा मौत है, लेकिन मैं तुम पर यह साबित करना चाहता हूँ कि दुनिया में बहुत सी सजाएं मौत से ज्यादा भयानक हैं। मैं तुम्हें वो सजा दे सकता हूँ जिसको बर्दाश्त करने की तुम में हिम्मत ना हो। मैं तुम्हारी जिंदगी को इस दर्जा तलख बना सकता हूँ कि तुम्हें हर लम्हा मौत से ज्यादा तारीक दिखाई दे, लेकिन मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि तुम जिंदा रहो। मैं तुम्हें एक ऐसी जिंदगी का रास्ता बताना चाहता हूँ जो तुम्हारी आकबत के तस्वुर से भी ज्यादा हुसैन है। तुम जंगों के मसाइब इसलिए बर्दाश्त करते हो कि तुम जिंदगी के ऐशो आराम से वाकिफ नहीं हो। तुम बेलौस इसलिए हो कि खुद नुमाई की लज्जत से नाआशना हो। ये चंद साल जिंदगी खुदा ने तुम्हें इस दुनिया की नेमतों से फायदा उठाने के लिए दी है। तुम इसकी कदर कीमत नहीं जानते। तुम बहादुर हो, लेकिन तुम्हारी बहादुरी तुम्हें इसके सिवा और क्या सिखाती है कि तुम ऐसे मकासद के लिए अपनी जान गंवाओ जिनका तुम्हारी जात से कोई ताल्लुक नहीं। तुम ये ख्याल करते हो कि तुम राह खुदा में कुर्बान हो रहे हो, लेकिन खुदा को तुम्हारी कुर्बानियों की जरूरत नहीं। तुम्हारी कुर्बानी से अगर कोई फायदा पहुंचता है तो खलीफा और हज्जाज को, जो घर बैठे फतूहात की शोहरत हासिल कर रहे हैं। तुम अपने आप को फरेब दे रहे हो। तुम्हारी जवानी और तुम्हारी शक्ल सूरत से जाहिर होता है कि तुम खाको खून में लौटने के लिए नहीं बनाए गए। तुम एक शहजादा मालूम होते हो। तुम्हारे लिए खूनख्वार भेड़िए की जिंदगी बसर करना जेबा नहीं। तुम्हें एक शहजादे की जिंदगी बसर करनी चाहिए। तुम एक हुसैन शहजादी की आंखों का नूर और दिल का करार बन सकते हो। तुम अपनी जिंदगी को एक रंगीन ख्वाब बना सकते हो। तुम अगर चाहो तो ना हमवार जमीन, पत्थरों और चट्टानों पर सोने की बजाय अपने लिए फूलों की सेज मुहैया कर सकते हो। दुनिया का बहुत सा ऐशो आराम दौलत से खरीदा जा सकता है। तुम अगर चाहो तो दुनिया भर के खजाने इकट्ठे कर सकते हो। दुनिया की हुसैन से हुसैन लड़कियों को अपने ख्वाबगाह की जीनत बना सकते हो, लेकिन तुम अभी अनजान हो। तुमने किसी की गैसों की महक से सरशार होकर जीना नहीं सीखा। तुम अपने बेगर्जी पर इसलिए खुश हो कि तुमने दुनिया के जाहो हशमत नहीं देखी। नौजवान, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। काश तुम मेरे शरीके कार बन जाओ। हम बनो उमैया की हुकूमत खत्म करके एक नया निजाम कायम करेंगे। मुझे यकीन है कि हमें खलीफा और हज्जाज का मगरूर सरकुसल देने में कामयाबी होगी। शायद तुम ये ख्याल करते हुए कि मैं वही इब्न सादक हूँ जिसके साथ तुम्हें बसरा के आम इजलास में वास्ता पड़ा था, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं इतना हकीर नहीं हूँ जितना कि तुम मुझे ख्याल करते हो। तुम्हारे लिए जान लेना काफी है कि मेरी पुश्त पर कैसरे रूम जैसे आदमी मौजूद हैं। अरब और अजम में एक जबरदस्त इनकलाब पैदा करने के लिए वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। मैं मुद्दत से तुम्हारे जैसे जादूगर नौजवान की तलाश में था। तुम्हारे सामने वो मैदान अमल पेश करना चाहता हूँ जिसमें तुम अपने खुदादाद जोहर का पूरा इस्तेमाल कर सकोगे। तुम्हारे जैसे नौजवान को एक मामूली सिपाही के ओहदे पर कनात करने की बजाय खिलाफत का दावेदार बनना चाहिए। नईम को खामोश देखकर इब्न सादक ने ख्याल किया कि वो इसके दामन फ्रेम में आ चुका है। उसने लहजे को जरा नरम करते हुए कहा, अगर तुम मेरे साथ वफादारी का अहद करो तो मैं अभी तुम्हारी जंजीरें खुलवा देता हूँ। बताओ तुम्हारा क्या इरादा है? तुम्हारे लिए जिंदगी बसर करने के लिए दो ही रास्ते हैं। कहो, तुम जिंदगी की नेमतों से मालामाल होना चाहते हो या उसी तारीख कोठड़ी में जिंदगी के बाकी दिन गुजारना पसंद करते हो? नईम ने गर्दन ऊपर उठाई। उसकी आंखें गैर मामूली करब का इजहार कर रही थी। उसने जोश में आकर जवाब दिया, तुम्हारी बातें मेरे लिए एक जख्मी कुत्ते की चीख और पुकार से ज्यादा मायने नहीं रखती। तुम नहीं जानते कि मैं उस आका का गुलाम हूँ जिसने जमीन के जर्रों से आसमान के सितारों तक का मालिक होने के बावजूद अपने पेट पर 3-3 दिन पत्थर बांधे थे। तुम मुझे दौलत का लालच देना चाहते हो? मैं दुनिया के तमाम खजानों को अपने खाके पास से ज्यादा हकीर समझता हूँ। तुम कहते हो जिंदगी ऐशो आराम का नाम है, लेकिन वो ऐशो आराम जो तलवारों के साए में आजादी का सांस लेने वालों को नसीब होता है तुम जैसे रजील इंसानों के तखय्युल से भी बुलंद है। तुम मुझे खुदा के रास्ते से हटाकर अपने जरील मकासद की तकमील के अलहकार बनाना चाहते हो, लेकिन अपने जाती मकासद के लिए खून की नदियां बहाने से एतराज नहीं करते। तुम्हें जिस कैसर की ताकत पर नाज है उसके बावजूद कई मार्कों में हमारी तलवारों का जोहर आजमा चुके हैं। बेशक मैं इस वक्त तुम्हारे कब्जे में हूँ, लेकिन ये कैद या मौत का खौफ मुझे बेहिस या बेजमीर नहीं बना सकता। तुम मुझसे किसी ऐसे काम की तवक्को ना रखो जो एक मुजाहिद के शायान शान ना हो। इब्न सादक ने किसियाना होकर जवाब दिया, तुम चंद रोज में ऐसे काम पर आमादा हो जाओगे जिसे देखकर शैतान भी शर्मा जाए। ये कहकर उसने अपने हाशिया नशीनों की तरफ देखा और एक शख्स को इसहाक के नाम से आवाज दी।
इस आवाज पर वही कभी हकेल जवान ने नईम को फरेब देकर गिरफ्तार किया था आगे बढ़ा। नईम को पहली बार मालूम हुआ कि उसका नाम इसहाक है। इब्ने सादक ने कहा, इसहाक, इसका दिमाग दुरुस्त करो। इब्ने सादक के हुक्म से नईम को बरामदे के एक स्तून से बांध दिया गया। उसने आगे बढ़कर नईम की कमीज फाड़ दी और उसका सीना और बाजू ओरिया करते हुए इसहाक की तरफ इशारा किया। इसहाक एक खूंखार भेड़िए की तरह आगे बढ़ा और नईम पर कोड़े बरसाने लगा। नईम ने उफ तक ना किया और पत्थर की तरह एक मजबूत चट्टान की तरह कोड़े खाता रहा। सामने के एक कमरे से एक लड़की नमूदार हुई और सहम सहम कर कदम उठाती हुई इब्ने सादक के करीब आ खड़ी हुई। वो कभी बेकरार से होकर नईम की तरफ देखती और कभी सरापा एहतजाज बनकर इब्ने सादक की तरफ देखती। उसका नाजुक दिल इस सफाकाना खेल को देर तक बर्दाश्त ना कर सका। उसने आंखों में आंसू भरते हुए इब्ने सादक की तरफ देखा और कहा, चचा, वो बेहोश हो रहा है, होने दो, वो अपने आप को अल्लाह की तलवार समझता है, मैं उसकी तेजी का खात्मा करके छोड़ूंगा। चचा, इब्ने सादक ने बरम होकर कहा, तुम खामोश रहो जुलेखा, यहाँ क्या करती हो, जाओ। जुलेखा सर झुकाए वापस हुई। उसने 2 मरतबा नईम की तरफ मुड़कर देखा, अपनी मजबूरी और बेबसी का इजहार किया और एक कमरे में रोपूश हो गई। जब नईम ने मार की शिद्दत से बेहोश होकर गर्दन ढीली छोड़ दी तो उसे फिर कैद खाने में फेंक दिया गया। नईम को कई बार कोठड़ी से बाहर निकालकर कोड़े लगाए गए। जब ये सजा कारगर ना हुई तो इब्ने सादक ने हुक्म दिया कि उसे चंद दिन भूखा रखा जाए। मुख्तलिफ जिस्मानी अजियतें उठाने के बाद नईम एक गैर मामूली कुव्वत बर्दाश्त पैदा कर चुका था। वो भूख और प्यास की हालत में रात के सोने की कोशिश कर रहा था कि किसी ने कोठड़ी के सुराख में से आवाज दी और चंद सेब और अंगूर अंदर फेंक दिए। नईम हैरान होकर उठा और सुराख से बाहर झांक कर देखा। चंद कदम के फासले पर कोई रात की तारीकी में गायब होता दिखाई दिया। नईम ने उसके लिबास और चाल से अंदाजा लगा लिया कि वो कोई औरत है। नईम के लिए अपने मौसम को पहचानना मुश्किल ना था। उसने कई बार कोड़े खाते वक्त इस नौजवान लड़की के बेकरार होते देखा था। उसके मासूम और हसीन चेहरे पर मजलूमियत और बेबसी के आसार नईम के दिल पर नक्श हो चुके थे। लेकिन वो कौन थी? इस भयानक जगह पर क्यों कर लाई गई थी? नईम ये सोचते हुए एक सेब उठाकर खाने लगा। नईम की मुहसना का नाम जुलेखा था। वो अपनी उम्र के 16 साल इंतहाई मसाइब में गुजारने के बाद मुस्वानी हुस्न का एक कामल नमूना थी। जुलेखा को हर इंसान से गायब दर्जा नफरत थी। वो एक मुद्दत से अपने सादक के साथ जिंदगी के तलख लम्हात गुजार रही थी और उसे हमेशा इंसानियत की बदतरीन मिसालों से वास्ता पड़ा था। वो हर इंसान को इब्ने सादक की तरह अय्यार, खुदगर्ज, सफाक और कमीना ख्याल करती थी। जब नईम इस किला में पाबा जंजीर लाया गया तो उसने यही ख्याल किया कि एक खुदगर्ज इंसान दूसरे खुदगर्ज इंसान के कब्जे में है। लेकिन जब उसने नईम को इब्ने सादक का साथी बनने से इनकार करते देखा तो उसके पुराने ख्यालात बदल गए। उसने महसूस किया कि ये नौजवान इस दुनिया का बाशिंदा नहीं जिसमें उसने जिंदगी के बेकैफ दिन और भयानक रातें गुजारी हैं। वो इसके ईमान और अज़म पर हैरान थी। शुरू में उसे मजलूम समझकर काबिल रहम ख्याल करती थी, लेकिन चंद दिनों में वो उसे काबिल सताइश नजर आने लगा। जुलेखा अपने वालिदैन के दर्दनाक अंजाम से वाकिफ ना थी और उनसे मिलने की दुआएं करने के बाद वो मायूस हो चुकी थी। उसके लिए दुनिया एक बेहकीकत ख्वाब और आक़िबत महज एक वहम था। इब्ने सादक के तशद्दुद के खिलाफ बगावत का तूफान उसके जख्म खोरदा दिल में बार बार उठने के बाद करीबन खत्म हो चुका था। वो मंजिल से भटके हुए और साहिल से मायूस मल्लाह की तरह मुद्दत तक मौजों के थपेड़े खाने के बाद तैरने या डूबने से बेपरवाह हो चुकी थी। वो अपनी नाव पर आंखें बंद किए बेखौफ व खतर मसाइब के तूफान में बही जा रही थी। उसे कभी कभी आंखें खोलने और चप्पू हिलाने का ख्याल आता, लेकिन फिर मायूसी अपना रंग जमा लेती। इस बेखानुमा मुल्लाह को साहिल या मंजिल की तरफ से किसी आवाज देने वाले की जरूरत थी। फितरत का ये काम नईम से लेना चाहती थी। नईम के साथ मामूली लगाव ने जुलेखा के दिल में ख्वाबिदा तूफान फिर बेदार कर दिए और अपने सादक के पंजे से रिहाई पाकर नईम की दुनिया में इत्मीनान का सांस लेने की तमन्ना उसके दिल में चुटकियां लेने लगी। जुलेखा हर शब किसी न किसी वक्त आती और खाने पीने की अशिया के अलावा नईम की तारीख कोठड़ी में उम्मीद की किरण छोड़कर चली जाती। 4 दिन के बाद नईम को फिर इब्ने सादक के सामने पेश किया गया। इब्ने सादक इसकी जिस्मानी हालत में कोई तगय्युर ना पाकर हैरान हुआ और बोला, तुम बहुत सख्त जान हो। शायद तुम्हारे खुदा को यही मंजूर है कि तुम जिंदा रहो, लेकिन तुम अपने हाथों अपनी मौत खरीद रहे हो। मैं अब भी तुम्हें सोचने का मौका देता हूँ
मुझे यकीन है कि तुम्हारे मुकद्दर का सितारा बहुत बुलंद है। तुम किसी बड़े काम की तकमील के लिए पैदा किए गए हो। मैं तुम्हें इस बुलंद मुकाम तक पहुंचाने का वादा करता हूँ, जहाँ तमाम इस्लामी दुनिया में तुम्हारा कोई मद्दे मुकाबिल ना हो। मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ, और ये आखिरी मौका है। अगर तुमने इस वक्त में मेरे खुलूस को ठुकरा दिया तो तुम बहुत पछताओगे। नईम ने कहा, जलील कुत्ते, तुम मुझे बार बार क्यों तंग करते हो? इस जलील कुत्ते का काटा कभी अच्छा नहीं होगा, और अब वक्त आ पहुंचा है कि यह जलील कुत्ता तुम्हें काटने के लिए अपना मुंह खोल दे। आकबतनान देश इंसान, जरा आंखें खोल और देख कि दुनिया किस कदर हुसैन है। देख वो सामने पहाड़ों के मनाजर कैसे दिलकश है। तुझे जिस चीज के देखने की होश है, आज अच्छी तरह देख ले और अपने दिल पर इनकी तमाम तस्वीर को अच्छी तरह नक्श कर ले, क्योंकि कल सूरज निकलने से पहले तेरी आंखें निकाल दी जाएंगी और तेरे कान भी सुनने की कुव्वत से महरूम कर दिए जाएंगे। आज जो कुछ देखना चाहता है देख ले, और जो कुछ सुनना चाहता है सुन ले। ये कहकर उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया और उन्होंने नईम को सुतून के साथ बांध दिया। हाँ, अब ये बताओ कि आंखों से महरूम हो जाने से पहले कोई ऐसी चीज है जिसे तुम देखना चाहते हो? नईम खामोश रहा। इब्न सादक ने कहा, तुम ये जानते हो कि मेरा फैसला अटल है। तुम्हें आज का सारा दिन यही गुजारने की मोहलत दी जाती है। इस वक्त से फायदा उठाओ और जो चीज तुम्हारी आंखों के सामने आए उसे अच्छी तरह देख लो, और जो नगमे तुम्हारे सामने गाए जाएं उन्हें अच्छी तरह सुन लो। ये कहकर इब्न सादक ने ताली बजाई और चंद आदमी ताउस और रबाब और दिगर किस्म के साज लिए हाजिर हुए और इब्न सादक के इशारे से एक तरफ बैठ गए। आहिस्ता आहिस्ता नगमे की सदा बुलंद हुई। इसके बाद चंद औरतें मुख्तलिफ रंगों के लिबास में मलबूस एक कोने से नमूदार हुईं और नईम के सामने आकर रक्स करने लगी। नईम सर झुकाए अपने पाँव की तरफ देख रहा था और उसके ख्यालात यहाँ से कोसों दूर एक छोटी सी बस्ती की तरफ परवाज कर रहे थे। इस मजलिस को मुनक्कद हुए चंद साथी गुजरी थी कि चंद तेज रफ्तार घोड़ों की टाप की आवाज से हाजिरीन मजलिस चौंक उठे। इब्न सादक उठकर इधर उधर देखने लगा। एक हिब्शी गुलाम ने आकर इतला दी कि इसहाक आ पहुंचा है। इब्न सादक ने नईम को मुखातब करके कहा, नौजवान, शायद तुम एक नहायत दिलचस्प खबर सुनो। थोड़ी देर बाद इसहाक एक तश्तरी उठाए हाजिर हुआ और इब्न सादक को आदाब बजा लाने के बाद तश्तरी सामने रख दी। तश्तरी में कोई गोलमोल शय रुमाल में लपेट कर रखी हुई थी। इब्न सादक ने तश्तरी में से रुमाल उतारा। नईम ने देखा कि तश्तरी में किसी आदमी का सर रखा हुआ है। शायद आप उसे देखकर खुश हों। ये कहकर इब्न सादक ने एक हिब्शी को इशारा किया। हिब्शी ने तश्तरी उठाई और नईम के करीब लाकर जमीन पर रख दी। तश्तरी में रखे हुए सर को पहचान कर नईम के दिल में एक सरका लगाया। ये इब्न अमर का सर था। सूखे हुए चेहरे पर अब भी एक तबस्सुम खेल रहा था। नईम ने अशक आलूद आंखों को बंद कर लिया। जुलेखा इब्न सादक के पीछे खड़ी ये दर्दनाक मंजर देख रही थी। इस अज़मत इस्तक़लाल के मुजस्समा की आंखों में आंसू देकर उसका कलेजा मुंह को आने लगा। इब्न सादक अपनी जगह से उठा, इसहाक को करीब बुलाकर थपकी दी और कहा, इसहाक, अब फकत एक शर्त बाकी है। मैं मोहम्मद बिन कासिम का सर इस नौजवान के साथ दफन करना चाहता हूँ। अगर तुम इस मुहिम में कामयाब हो गए तो जुलेखा को तुम्हारे जैसे बहादुर नौजवान को अपना शरीका हयात मुंतखब करने में कोई उज़र ना होगा। ये कहते हुए इब्न सादक ने जुलेखा की तरफ मुड़कर देखा। वो आंसू बहाते हुए अपने कमरे की तरफ भाग गई। इब्न सादक नईम के पास आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, मुझे मालूम है तुम्हें इब्न कासिम से मोहब्बत है। अगर तुम इसका सर यहाँ पहुंचने तक जिंदा रह सके तो मैं वादा करता हूँ कि उसका सर तुम्हारे साथ दफन किया जाएगा। ये कहकर इब्न सादक ने सिपाहियों को हुक्म दिया और वो नईम को